Hello everyone and welcome to part 2 of rates and returns, right? This is the first chapter or the first learning module from the quant section in your 2024 CFI curriculum, right? Or the CFI syllabus. ये सबसे पहला आपका चैप्टर है उसके अंदर और ये जो वीडियो है दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट चैप्टर. लास्ट वीडियो के अंदर जो है हम लोगों ने we took a look at time value of money and interest rates और हमने लास्ट चैप्टर के अंदर जो है हमने इंटरेस्ट रेट्स की 3 डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस को भी देखा था. तो इफ यू हैवंट सीन दैट वीडियो यू आर वेलकम टू चेक दैट on our YouTube channel, right? So now इस वीडियो के अंदर जो है हम बेसिकली बात करेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स के what determines what are different determinants या क्या तो कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, राइट? इंटरेस्ट रेट्स के क्या कंपोनेंट्स हैं जो कि ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स को डिटर्मिन करते हैं, राइट? तो आई लाइक टू स्टार्ट बाय पॉइंटिंग आउट दैट इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली इकोनॉमिक्स जो है वो according to economic theory, interest rates are determined by forces of demand and supply, right? जो तो उसके अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं वो सप्लायर्स ऑफ फंड्स हैं, राइट? बिकॉज इन्वेस्टर इज समवन. इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर वो होता है जो कि कहता है कि जी मेरे पास इस वक्त पैसे हैं एंड आई एम गोइंग टू पुट दैट मनी. I'm not going to spend that money, but I'm going to lend it or invest it, right? So that someone else can use it, right? And satisfy a current need or want, right? So, उस perspective से जो investor है वो investor is going to be the supplier of funds, right? They are supplying the money or the financial resources to someone else, right? That could be an individual or an organization, doesn't matter. Supplier of fund जो है वो investor जो है वो supplier of fund है, right? Just remember that. और उसके बाद आपका right तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि इन्वेस्टर जो है वो सप्लायर ऑफ फंड्स है और आपका जो बोरोवर है वो डिमांड क्रिएट कर रहा है इन फंड्स की, राइट? जो आपका इन्वेस्टर है जो कि बेसिकली जिसने फंड सप्लाई किए हैं इन फंड्स की जो डिमांड है वो बोरोवर क्रिएट करता है, राइट? लेट्स से you want to invest in let's say you want to invest $10,000 in a bank in your bank in let's say a certificate of deposit जो कि एक टाइप ऑफ सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट है, राइट? तो इफ यू लेट्स से यू गो टू योर लोकल बैंक एंड यू से ओके आई हैव गॉट दिस मच मनी एंड आई वांट टू इन्वेस्ट इट. सो व्हेन यू गिव योर मनी टू द बैंक, राइट, it's the bank, what is the bank going to do with that money, right? So सबसे पहले तो the bank, we have to understand the bank is going to of course be lending that money out to someone else who is in need of a loan, right? So the investor, let's say in this example, which is you, the student, तो आपने बेसिकली फंड सप्लाई किए हैं मार्केट के अंदर, राइट? थ्रू वॉट एवर चैनल, बैंक्स हों या इंश्योरेंस कंपनीज हो, वॉट एवर मल्टीपल चैनल्स होते हैं. नॉट गोइंग टू गो टू दैट राइट नाउ, बट एनीवे the point I'm trying to make is के the point to remember over here is that कि जो funds हैं वो the investors जो है वो funds के suppliers हैं, right? और जो borrowers हैं, the borrower, let's say now borrowers के perspective से बात कर लेते हैं कि जो borrower है आपने तो पैसे lend कर दिए बैंक को, लेकिन अब वो बैंक उस पैसे क्या करेगा? बैंक is going to lend out, right? So bank can earn a certain level of interest from the borrower, right?
बिकॉज रिमेंबर वन थिंग कि जो सप्लायर ऑफ फंड्स हैं, यानी कि लेट्स से यू हैड $10,000 in savings, and you went to your local bank and lend to let's say you put your money into a certificate of deposit in that bank. तो बैंक की तो liability create हो गई है, right? Because the bank now has to pay you interest on it, right? So how is the bank going to pay you interest? It's not going to pay you out of its own pocket. It's basically going to आपका पैसा लेके आगे lend out करेगा at a higher rate, और आपको जो है let's say you put your money into the bank at let's say 5% per year, okay? And so the bank जो है वो bank is going to lend out let's say at 8 or 9 or 10% or whatever, right? जो whatever the prevailing market conditions are, economic conditions, right? उसकी basis पे the bank is going to lend that money out at a higher rate than what it is supposed to pay you, right? And it's going to keep a spread, right? जिसे कहते हैं बैंक spreads होते हैं, right? Interest rate spreads होते हैं. So right, so this is how the banking system is working. इसके अंदर आपको बैंकिंग भी थोड़ी सी ओवरव्यू मिल रहा है, but you have to understand that the interest rates जो investor है, they are the suppliers of funds, right? Who are supplying the funds to the borrowers, right? और borrowers जो हैं वो उसके in exchange for using the investors' money, or the suppliers financial resources और capital, तो उसके बदले में जो borrower है वो interest पे करेगा, right? Now I'm going to remove everything. Right, so अब एक जो अच्छा ये जो बात समझने की है कि हम लोग क्योंकि फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं तो हम लोग चीज़ों को इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं, राइट? बिकॉज व्हाट आर वी डूइंग, वी ट्राइंग टू एनालाइज कि एक जो इन्वेस्टर है वो पैसे इन्वेस्ट करने लगा है तो वो क्या उसको पैसे लगाने चाहिए, राइट? Since we let's say you and I we are looking at we are helping a client come up with decide whether they should invest money in the market or not, तो हम क्या कर रहे होंगे, हम इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से लेकर हम चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं और हम लोग देख रहे होते हैं कि whether it's a good idea to for that specific investor, right, or our client to put money into the bank, right? Or maybe we want to do analysis for ourselves. तो इन एनी वे हम लोग बेसिकली ये देख रहे होते हैं कि हम लोगों को पैसा बेसिकली लगाना चाहिए मार्केट्स के अंदर या नहीं, राइट? बेस्ड ऑन द प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स. नाउ इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से आप लोगों को बहुत जरूरी बात समझने की है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं जो कि बाय द वे डिनोटेड बाय आर, राइट? ये आप लोग प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, for those of you who have already studied time value of money, if you haven't then don't worry, that's the next chapter we're going to be studying, right? So but anyway the point is that time value of money अगर आप देखें तो उसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू की जो कैलकुलेशन है उसके अंदर कहते हैं कि फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r raised to power n. This r is this r, okay? These two are the same, right? This r is the interest rate, okay? Why we use that we'll go to that later, but anyway this is the thing to remember कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ भी के अंदर भी आप लोग बहुत ज़्यादा इसको आप लोग इसको देख रहे होंगे, राइट? इसका यूज़ होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इंटरेस्ट रेट्स का, यानी कि इन अदर वर्ड्स एसेट वैल्यूएशन, एसेट्स की जो वैल्यू होती है वो इंटरेस्ट रेट्स के बेसिस पे निकाली जाती है, राइट? बिकॉज और ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो किस तरह के डिटर्मिन होता है, वो इंटरेस्ट रेट्स को प्रिवेलिंग मार्केट इंटरेस्ट प्रिवेलिंग या फोरकास्टेड या जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उनके बेसिस पे हम उन इंटरेस्ट रेट्स को यूज़ करते हुए हम लोग बेसिकली एसेट्स की वैल्यूएशन करते हैं. If you don't understand this, then don't worry because we're going to go into this in more detail later on, right? So anyway,
Now, again, coming back to our topic, which is right here, which we're discussing, that investor perspective, and I'm going to just read this out once very quickly. Taking the perspective of investors in analyzing market determined interest rates, right? Markets कैसे determine करती हैं interest rates को? Markets जो है वो on the basis of demand and supply करती है, right? And please note that the higher the higher demand for funds, the higher the interest rates. And right, and vice versa. In other words, the lower the demand for interest rate, the lower the interest rates, right? And the higher the supply of funds, right? The higher the supply of funds, the lower the interest rate, and the lower the supply of funds, the higher the interest rates, right? तो ये दोनों फोर्सेस जो है डिमांड सप्लाई की फोर्सेस जो है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, रिमेंबर दिस, यानी कि राइट, सो दीज आर द टू फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई. अगर जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, राइट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट पे प्रिवेलिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट जो है डिटर्मिन किए जाएंगे. रिमूव दिस नाउ, राइट. सो अब सवाल ये पैदा होता है कि डिमांड सप्लाई के बेसिस पे तो हो रहे हैं, लेकिन राइट, सो इसके अंदर बेसिकली what we okay, let me first continue with this bullet point. So we were saying that we can view an interest rate, which is basically denoted by R, as being composed of a real risk-free interest rate plus a set of premiums that are required returns or compensation for bearing distinct types of risk. एक बहुत जो जरूरी बात आप लोगों को समझने की है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक थ्योरी, राइट, ये इन्वेस्टमेंट फाइनेंस से रिलेटेड जब हम इंटरेस्ट रेट्स की बात करते हैं, तो जो आपका इंटरेस्ट रेट है या आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो बेसिकली, एंड रिमेंबर वी आर टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टर, राइट. तो इन्वेस्टर किस चीज के अपना रिटर्न मांग रहा होता है? रिटर्न जो है, इट्स इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट एन इन्वेस्टर इज बेसिकली being compensated for taking on different types of risks, okay? Not just that, बल्कि उसके अंदर उसका एक और मेजर कंपोनेंट भी होता है. और बाय द वे हम उन सारे डिफरेंट रिस्क जिसको इन्वेस्टर को बेयर करने का एक कॉम्पनसेशन मिलती है, उसके अलावा एक और बहुत मेजर कंपोनेंट होता है जो कि ये रियल risk-free interest rate है, right? This one, the real risk-free interest rate. I'm just writing the abbreviation over here. Real risk-free interest rate, right? ये जो है, ये I'm just going to tell you what this is in a minute. But right now, just understand that the real risk-free interest rate plus other टाइप्स ऑफ रिस्क भी रिस्क होते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे जल्दी. तो इन दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, सबसे पहले डिफरेंट रिस्क प्रीमियम्स या डिफरेंट रिस्क जो एक इन्वेस्टर बेयर कर रहा है उसको कॉम्पनसेशन मिल रही है, और दूसरा उसको ये रियल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट की भी कॉम्पनसेशन इज गेटिंग दैट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन, राइट, फॉर लेंडिंग आउट their funds. I'm going to remove all the annotations. अब वो क्या कंपोनेंट्स हैं, लेट्स टेक अ लुक एट दैट. हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि R जो है, दिस डिनोट्स राइट इंटरेस्ट रेट्स, राइट, मार्केट डिटरमिन्ड इंटरेस्ट रेट्स. लेकिन वो इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो डिमांड सप्लाई के बेस पे तो हो रहे हैं, लेकिन जो डिफरेंट इन्वेस्टर के परस्पेक्टिव से ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी आपको देखना पड़ता है. बहुत जरूरी है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसके अंदर हमने जिस तरह बोला कि रियल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है,
और प्लस अदर रिस्क प्रीमियम, ये सारे अदर रिस्क प्रीमियम है जिसको मैं आपको काउंट करवा देता हूँ. लेट्स एक्चुअली गो थ्रू देम वंस वेरी क्विकली. राइट, इन्फ्लेशन प्रीमियम. राइट, ये क्या होता है हम अभी डिस्कस करेंगे. दिस इज द फर्स्ट रिस्क प्रीमियम. द अदर अनदर इज डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम. राइट, देन लिक्विडिटी. थर्ड इज द लिक्विडिटी प्रीमियम. द फोर्थ इज द मैच्योरिटी प्रीमियम. राइट, ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिशनल प्रीमियम्स हैं जो कि एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टर डिमांड कर रहा है या चार्ज कर रहा है. राइट, बेस्ड ऑन दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क. वो क्या होते हैं हम डिस्कस करेंगे. बट एनीवे, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि रियल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट क्या होता है. राइट, अब आप बहुत से लोगों से पूछें कि whenever I take sessions, तो मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि भाई what do you think why if I lend you money why am I charging you, right? What's the rationale behind it? तो सब ज़्यादातर स्टूडेंट बोलते हैं सर वो जो है वो इन्फ्लेशन होगी. ठीक है ना. तो अगर आप रियल रिस्क फ्री रेट को देखें, राइट, जो मेजर सबसे पहला कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है. I'm going to remove everything, the annotations by the way. ये वाला जो कंपोनेंट है द रियल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो ये अकॉर्डिंग टू द CFA करिकुलम इट सेज दैट द रियल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इज द सिंगल पीरियड इंटरेस्ट रेट फॉर अ कंप्लीटली रिस्क फ्री सिक्योरिटी. राइट, रिस्क फ्री सिक्योरिटी. राइट, इफ नो इन्फ्लेशन वर एक्सपेक्टेड. तो मैं जिस तरह मैंने आपको बोला कि मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि व्हाई डू यू थिंक अगर इफ यू आर लेंडिंग, इफ आई आस्क द स्टूडेंट के इफ यू लेंड मी मनी व्हाट्स योर रैशनल फॉर चार्जिंग मी इंटरेस्ट. राइट, तो सब बोलते हैं सर क्योंकि इन्फ्लेशन हो रही होगी तो आपको जो है वो मुझे you should pay me cash, you should pay me something for it. तो the answer to the question is the सबसे पहला जो कंपोनेंट है द रियल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है वो इन्फ्लेशन के लिए नहीं आपको कॉम्पनसेट कर रहा, क्योंकि क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ CF इंस्टीट्यूट के सिलेबस के अंदर कि इट इफ नो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड. राइट, तो अगर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड नहीं है तो एंड ऑफ कोर्स इट्स अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो, inflation will always exist, right, in some form or the other as long as there are fiat currencies. लेकिन the point is कि जो compensation आपको मैं दे रहा हूँ वो बेसिकली आपको is basically there to let me just point out कि तो the compensation that you are getting is basically the real risk-free rate reflects basically the time preferences of individuals for current versus future real consumption. Okay, now what that means is in very simple terms what this means is कि आपका जो ये जो component है interest rates का the real risk-free interest rate, ये basically आपको compensation मिल रही है क्योंकि ताकि आप because you are delaying gratification. In other words, इसके सिंपल टर्म्स में आपको मैं इसको बोलूँ तो ये होगा कि you're getting paid or you're getting compensated for first of all having the money, because you have the money and you could have spent it but you decide not to spend it, and so you are delaying your gratification, you are delaying satisfying a current need or want, because you can spend the money right now and satisfy a need or a want. Again, you said no I want to delay gratification, I want to not spend my money right now and I will lend it to someone so I can earn a return on it, right? So and normally the expectation, the thinking is that I'm going to have more money to spend in the future, right? For whatever reason you want a greater amount of money than you have right now, right? So basically आपको जो compensation मिल रही है यानी कि इस रियल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट के शक्ल में, क्योंकि सबसे पहला कंपोनेंट है इंटरेस्ट रेट्स का, उसके अंदर आपको इस बात की कॉम्पनसेशन मिल रही है कि आपने बेसिकली आपने चूज किया नॉट टू स्पेंड राइट नाउ बट इन द फ्यूचर, ऑल्दो यू हैड द मनी राइट नाउ. ओके, सो दैट्स एंड प्लीज नोट, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसके अंदर इन्फ्लेशन का कोई ताल्लुक नहीं है. ये जो रियल टर्म वर्ड इधर यूज किया गया है ये इसका मतलब ही ये है कि
इस कंपोनेंट के अंदर इन्फ्लेशन की कोई फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन नहीं है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू जस्ट दिस कंपोनेंट ये वो रिटर्न है जो कि इन्वेस्टर को दिया जा रहा है फॉर डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन इन अ सिनेरियो के जिधर इन्फ्लेशन नहीं होगी, राइट? लेट्स से यू आर लेंडिंग मी मनी फॉर अ ईयर, लेट्स से $100, तो मैं आपको जो कॉम्पनसेशन दे रहा हूं वो बेसिकली फॉर डिलेइंग योर फर्स्ट ग्रेटिफिकेशन है, right? You are not spending the money right now, but you're giving it to me, so I can satisfy a need or current need or want. तो आपको इस डिलेइंग ऑफ ग्रेटिफिकेशन के आपको बेसिकली पैसे मिल रहे हैं, ठीक है? मैं आपको पैसे दे रहा हूं, और अगेन उस एक साल के अंदर, अगर लेट्स से यू लेंड मी फॉर अ ईयर, तो उस एक साल के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट करें कि इन्फ्लेशन नहीं होगी. ओके, आई होप दैट मेक्स इट वेरी क्लियर. नाउ आई एम रिमूव एवरीथिंग. फिर आपका आया था डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम. ओके, sorry, let's actually talk about the inflation premium. Inflation premium is, of course, I'm going to first read out, what the inflation premium is, and then we'll take a look at what's actually going on with that. Now, inflation premium जो है basically compensates investors for expected inflation and reflects the average inflation rate expected over the maturity of the debt, right? So, सबसे पहले तो ये बात हमने establish कर दी कि जो inflation premium है, राइट, वो बेसिकली आपको कॉम्पनसेट कर रहा है फॉर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन. प्लीज नोट के पहले कंपोनेंट जो कि रियल रिस्क फ्री रेट है, उसके अंदर मैंने बोला कि आपको इन्फ्लेशन के पैसे नहीं मिल रहे. हमने वो उसका रियल रिस्क फ्री रेट का की डेफिनेशन के अंदर दिया हुआ कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड नहीं है, राइट? वो एक आपको डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन के फॉर नॉट सेटिस्फाइंग करंट नीड और वांट, नॉट स्पेंडिंग योर मनी विच यू हैव राइट नाउ, उसकी आपको कॉम्पनसेशन मिल रही है. और अब आया इन्फ्लेशन का जो सेकंड कंपोनेंट है ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, दैट्स वेयर यू आर बीइंग कॉम्पनसेट फॉर इन्फ्लेशन, राइट? बिकॉज ऑफ कोर्स ये मैंने इस तरह उस वक्त शुरू में बोला था कि रियल रिस्क फ्री रेट जो है वो कहता है कि इन्फ्लेशन की आपको कॉम्पनसेशन नहीं हो रही, लेकिन ऑफ कोर्स दैट इज अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो. असल नॉर्मल सिचुएशन में तो इन्फ्लेशन होगी, तो दैट इज वाई वो आपको इन्फ्लेशन का जो प्रीमियम है वो एक असाइड अदर देन योर रियल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, इससे हट के आपको ये मिल रहा है, तो आपको बेसिकली इन्फ्लेशन प्रीमियम मिल रहा है, राइट? आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल द एनोटेशंस, राइट? सो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द इन्फ्लेशन प्रीमियम. देन वी हैव डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम. नाउ प्लीज नोट, जब मैं लोगों से रियल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट का पूछता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की कॉम्पनसेशन है, जो कि हमने ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर लिया है कि वो नहीं है. रियल रिस्क फ्री रेट के अंदर एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन जीरो होगी, लेकिन और कुछ वे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जी सर ये तो आपको डिफॉल्ट, क्योंकि अगली पार्टी डिफॉल्ट कर सकती है, ठीक है ना, तो ये उसका है, तो ये डिफॉल्ट रिस्क भी नहीं है. प्लीज नोट, दिस रियल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इज नॉट डिफॉल्ट रिस्क. यानी कि ज्यादा क्यों इसलिए होता है क्योंकि ऑफ कोर्स दैट्स अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज यू गाइस a lot of you are studying finance for the first time, तो ये क्लैरिटी नहीं होती. तो इसके अंदर ये भी है कि जो डिफॉल्ट रिस्क है वो इस रियल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट का हिस्सा नहीं है, राइट? डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम आपको अलग से हमने आइडेंटिफाई किया है. और ऑफ कोर्स व्हाट इज डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम? डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम इज के जो बोरोवर है, राइट, the borrower fails, right? The borrower fails to make a promised payment at the contracted time and in the contracted amount. In other words, आपने मुझे पैसे दिए और मैं आपको टाइम पे पैसे याद नहीं, मैंने आपको बोला जी मैंने आपसे $100 लिए, मैंने आपको बोला कि मैं आपको एक साल के बाद 5% दूंगा इसके ऊपर, राइट? तो अगर मैं आपको एक साल के बाद नहीं दे सकता, if I'm unable to repay you that 5% or $5, right? और of course $100 को 5% $5 बनता है. तो इस सिचुएशन के अंदर ये डिफॉल्ट कंसिडर किया जाएगा, राइट? और जितना ज्यादा चांस है मेरा डिफॉल्ट करने का, उतना ज्यादा जो है वो रिस्क प्रीमियम चार्ज होगा, डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम, राइट? और जितने मेरे चांसेस लो हैं डिफॉल्ट करने के, तो उतना ही कम ये प्रीमियम चार्ज होगा. प्लीज नोट, सब रिस्क प्रीमियम का यही सिचुएशन है, राइट? इन्फ्लेशन रिस्क प्रीमियम की, डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम की, और बाकी जो दो है लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम और मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम,
इन सब की ये बहुत ज़रूरी बात आपको याद करने की है, रखने की है कि सारे जो रिस्क प्रीमियम्स हैं वो बेसिकली आपको जितना ज़्यादा वो उस स्पेसिफिक टाइप का रिस्क होगा उतना ज़्यादा वो प्रीमियम चार्ज किया जाएगा, ठीक है ना. इन अदर वर्ड, प्लीज नोट, वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द बेसिक रूल्स ऑफ फाइनेंस इज द हायर द रिस्क, द हायर द एक्सपेक्टेड रिटर्न. ओके, दिस ई स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेड एंड ब्रैकेट के अंदर आ रही है इस तरह, आप लोग इसको डिनोट हुए वैसे देखेंगे बहुत दफ़ा CFA की आपकी स्टडीज़ के अंदर. सो एनीवे, द हायर द रिस्क द हायर द रिटर्न. इन अदर वर्ड्स, जितना ज़्यादा मैं रिस्क ले रहा हूँ व्हेन आई एम लेंडिंग मनी आउट, जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क ज़्यादा हैं, राइट, तो मैं उतना ही ज़्यादा चार्ज करूँगा, राइट. रिमेंबर दिस इज फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव, राइट. जो बंदा लैंड कर रहा है, द सप्लायर ऑफ फंड्स, राइट. आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल द एनोटेशंस. Okay, so that's basically default risk premium, right? One more thing, default risk premium के लिए it's not just कि मैं वक्त पे नहीं दे सक रहा हूँ, और दूसरा अमाउंट ये भी है कि मैं राइट, सबसे पहला, so one more time and repeat, the default risk premium जो है वो कहता है कि जो borrower है, if he or she, if they are or an organization, could be organization, right, if the borrower, whoever the borrower is, unable to रीपे एट द कॉन्ट्रैक्टेड टाइम, राइट. जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ कि जी इस स्पेसिफिक डेट को आप पेमेंट करेंगे, आप लेट्स से आई बोरोड फ्रॉम यू एंड आई हैव प्रॉमिस्ड टू पे यू एट अ स्पेसिफिक डेट आफ्टर अ ईयर. इफ आई एम अनएबल टू पे यू एट दैट स्पेसिफिक डेट विद इन दैट टाइम फ्रेम, जो हमारा अग्रीड अपॉन टाइम फ्रेम है, तो दैट बेसिकली लीड्स टू डिफॉल्ट दैट लीड्स टू डिफॉल्ट. और ये दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम. ओके, सो यू आर गोइंग टू, अगर मेरे चांसेस बहुत ज़्यादा डिफॉल्ट करने के, राइट, तो यू आर गोइंग टू, द लेंडर इज गोइंग टू चार्ज अ हायर अमाउंट और चार्ज अ हायर रिस्क प्रीमियम. ओके, तो सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्टेड टाइम के अंदर है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट के अंदर भी, ठीक है ना. या तो मैं आपको टाइम पे ना दे सकूं, और या दूसरा ये कि मैं आपको टाइम पे दे सकूं लेकिन जितना अमाउंट बोला था वो नहीं दे सकूँ, जितना अग्रीड अमाउंट. जैसे मैंने आपको बोला $100 के ऊपर मैंने $5 आपको रीपे करने, मैं आपको सिर्फ $3 दे सका, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू बी अ डिफॉल्ट. ओके, और अगर इसका चांस ज्यादा है तो यू द लेंडर आर गोइंग टू चार्ज ग्रेटर अमाउंट. ओके, नाउ और तीसरी सिचुएशन ये कि दोनों टाइम पे भी नहीं किया और जितना करना था वो भी नहीं किया, ठीक है ना. तो ये बेसिकली सारी सिचुएशन के अंदर डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम आ गया, ठीक है. अब लिक्विडिटी प्रीमियम भी आपका होता है. लिक्विडिटी प्रीमियम जो है बेसिकली ये होता है कि लिक्विडिटी प्रीमियम बेसिकली ये कहता है कि जो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बेसिकली कॉम्पनसेट करता है फॉर रिस्क ऑफ लॉस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू इफ द इन्वेस्टमेंट नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू कैश क्विकली. ना बहुत जरूरी बात है समझने की कि आपका लिक्विडिटी क्या होती है. लिक्विडिटी क्या है, सॉरी, लिक्विडिटी ये होती है कि हाउ कैन एन एसेट, राइट, बी वेरी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश. ओके, यानी कि लिक्विडिटी इसको कहते हैं, लिक्विड एसेट होता है. हाईली लिक्विड एसेट इज वन जो कि बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है विदाउट लूजिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू. एक बात आप लोग समझने की आप लोग ये है कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा रियल स्टेट की, राइट. रियल स्टेट इज कंसिडर्ड टू बी, इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ वेरी लिक्विड, राइट, एज अपोज टू लेट्स से स्टॉक्स. ओके, अगर आप स्टॉक्स में देखें, और आई एम टॉकिंग अबाउट लेट्स से एक बहुत हाई वॉल्यूम स्टॉक है, राइट. बाय स्टॉक ऑफ कोर्स आई मीन द स्टॉक एक्सचेंज के जो शेयर ट्रेड कर रहे होते हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी मोर लिक्विड एज कंपेयर टू रियल स्टेट, राइट. क्या रीजन होते हैं, वी विल नॉट गेट टू दैट राइट नाउ, बट जस्ट गो विद मी. ये आगे जाके आप लोग इस कॉन्सेप्ट को भी एड्रेस करेंगे, लेकिन फाइनल फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि जो आपका रियल स्टेट है इज कंसिडर्ड टू बी इलिक्विड, और शेयर्स जो है ये स्टॉक्स जो है वो दे कंसिडर्ड टू बी मोर लिक्विड. ओके, तो उस सिचुएशन में इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन रियल स्टेट, राइट, वेल आई एम इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, तो relatively you are going to charge a higher liquidity premium. Okay, because why? Because if you want to, because let's say you are investing in real estate while I'm investing in stocks, so if I want to convert my stocks into cash,
I can simply go to my broker, just put in a sell order कि जी if I tell my broker कि ये मेरे please sell my shares, so they can offload it relatively much more quickly, right, and without losing too much value, right. प्लीज नोट कि उसके अंदर भी इलिक्विड और लिक्विड स्टॉक्स होते हैं, हम उसमें नहीं पढ़े, हम जस्ट एक फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी है, राइट. तो बट एनीवे द पॉइंट स्टैंड्स के जो शेयर्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर लिक्विड और रियल एस्टेट इज कंसिडर्ड टू बी लेस लिक्विड. तो again coming back to that, why are you going to charge a higher liquidity premium if you are investing in real estate? The answer is के because real estate is less liquid. अगर आप बोलेंगे रातों रात मैंने अपने करोड़ों रुपए का लेट्स से घर है या अपार्टमेंट वॉट एवर रियल स्टेट है, मैंने वो बेचना है, तो इट्स नॉट राइट. सो व्हेन यू गेट इनटू दैट मार्केट प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस में आएंगे, आप लोगों को समझ में आएगी दिस इज एक्चुअली ट्रू, दिस हाउ इट वर्क्स. कि अगर मुझे एक चीज़ जल्दी बेचनी है तो मुझे उसको यानी जल्दी बेचने से मतलब है जल्दी उसको कैश में कन्वर्ट करना है, राइट. तो उसके अंदर मुझे आई हैव टू गिव डिस्काउंट्स, राइट, टू क्योंकि राइट एवरीवन डज नॉट हैव लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैश लाइंग अराउंड लाइक दैट. सो नॉर्मली ये होता है कि जी आप लेट्स से यू कम टू मी से कि सर मैंने अपना अपार्टमेंट बेचना है रातों रात, मेरी लेट्स से फॉर एग्जाम्पल फॉर XYZ रीजन वट एवर, राइट. तो I am going to say okay I will pay you, but I am probably going to ask you for a discount. I will not pay you the let's say the market price for it. जो prevailing market price है मैं उससे आपके डिस्काउंट भी लूँगा, राइट. अब वो कितना है, वो जितना illiquid asset है उसका उतना ज़्यादा डिस्काउंट लगेगा, और इसी बात के आप बेसिकली पैसे ले रहे हैं, राइट. Remember again, we are taking a look at from the things from the investor, from the perspective of an investor. If I am going to invest my money in real estate, I am basically going to saying that okay मैं अपना पैसा तो लगा रहा हूँ, लेकिन भाई लेकिन ये बात मुझे याद रखनी चाहिए कि ये एसेट इतनी जल्दी से कन्वर्ट नहीं होगा, therefore I'm going to demand a higher liquidity premium, right. I'm going to remove the annotations, and finally we come to the maturity premium. Okay, just a minute. Maturity जो है वो मेच्योरिटी बेसिकली डेट या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के साथ रिलेटेड होती है, राइट, नॉर्मली, राइट. तो यह होता है कि मैंने बेसिकली हाउ डज अ बॉन्ड वर्क. बॉन्ड ये होता है कि मैंने लेट्स से 2 साल का लेट्स से बॉन्ड खरीदा at t is equal to 0, this is t is equal to 1, this is t is equal to 2, okay. So let's say if I buy the bond for $100, okay, this is going to be cash outflow. I buy the bond, I pay the money. So let's say this is a 5% bond, okay. Coupon rate जो है, and if you don't know what coupon rate is, don't worry. When we get to fixed income instruments, we will discuss this, okay. Now normally होता ही है कि बस बेसिकली आप बस ये याद रख लें कि 5% is what the bond is paying every year, okay. So अगर आपने $100 का बॉन्ड लिया है तो at the end of the first year when we reach this point, तो right, let's say you bought the bond from me, right, or you are the investor, right, you invested in the bond, I'm going to have to pay you $5, sorry, not 5%, just a minute, $5 after this time has elapsed, let's say the first period. इसके बाद क्या होगा कि 2 साल का था, right, remember that I've already mentioned that this is a 2-year bond. तो and remember I'm trying to help you guys understand कि maturity क्या होती है, right. फिर this is a 2-year bond, 1 साल और गुजरेगा तो I'm going to and since you remember you are the investor, you have paid me money, right, right, or you have bought the bond from me, right, right. So I'm going to pay you another $5, okay. और मैं आपको since अब ये सेकेंड ईयर पे आ गया तो 2 साल का बॉन्ड था, okay. This is year 2, right. At the end of year 2 I'm going to pay you another $5, and I'm going to also have to repay you this $100, right. So I'm going to pay you another $100, okay. So maturity, this is the maturity, okay. Maturity means के वो पॉइंट जिसके ऊपर आपका जो इनिशियल प्रिंसिपल है वो आपको वापस मिल जाता है. रिमेंबर दिस $100 वाज योर इनिशियल प्रिंसिपल, ओके, और इट्स द एक्चुअल अमाउंट जो कि आपने लेंड आउट किया है,
राइट. इन अदर वर्ड्स आपको जो आपने जो बॉन्ड खरीदा है $100, $1,000, वट एवर जो आपका उसकी फेस वैल्यू है वो उसके ऊपर. और इफ यू डोंट नो दिस टर्म, डोंट वरी, वी विल गेट टू दिस लेटर. ओके, आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल ऑफ दिस. जस्ट रिमेंबर के फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट जो है, डेट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, उनकी मैच्योरिटी होती है. यानी कि डेट में होता क्या है कि मैं आपको, या आप, लेट्स से you are the investor, I have borrowed from you, you have lent me money, right? तो फिर, और let's say we have agreed to 1 year कि मैं after 1 year आपको, let's say we are going to agree on a specified amount of money which I'm going to have to pay you after that as interest, plus I also have to repay the principal, right? तो principal को भी जब मैं repay करूँगा तो that's called the maturity, right? The maturity is basically the time frame or a specific future point in time at which the borrower has to repay the initial principal. Okay, very simple terms में बता रहा हूँ, ठीक है. Anyway, so that's how it works. और फिर जो आपका जो फाइनल तो आपका जो maturity जो है, maturity premium now क्या कहता है, let's read, right? The maturity premium compensates investors for the increased sensitivity of the market value of debt to a change in market interest rates as maturity is extended. Okay, ये simply ये कह रहा है कि अगर मैं आपको कहता हूं कि buy a 2-year bond from me, right? 2-year bond, या इसको एक्चुअली और सिंपल करते हैं. मैं आपको कहता हूँ lend me $1,000 for 2 years. ओके, तो आपकी मेच्योरिटी इस सिचुएशन में क्या हुई, सिनेरियो वन में आपका जो ओरिजिनल $1,000 है वो आपको 2 साल के बाद मिलेगा, ठीक है. एज अपोज टू दिस मैं आपको दूसरा ऑप्शन देता हूं कि lend me $1,000 for what? For let's say 15 years. Okay. Now, इस सिचुएशन, ये दो सिनेरियोज हैं, राइट? अब आपके ख्याल में मैं किस सिनेरियो के अंदर, इन दोनों सिनेरियोज में से किस सिनेरियो के अंदर ज्यादा मेच्योरिटी प्रीमियम चार्ज करूंगा? ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू चार्ज यू अ ग्रेटर मेच्योरिटी प्रीमियम एट फॉर ऑप्शन 2 विच इज बेसिकली 15 years, राइट? मैं 15 साल के लिए आपको अपने आपको पैसे दे रहा हूं, ठीक है. तो मुझे जो प्रिंसिपल है वो 15 साल के बाद मिलना है, राइट? तो इस वजह से राइट, सो इसके इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है कि ऑल द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट ऑन लॉन्ग मेच्योरिटी, ऑन द लॉन्गर मेच्योरिटी or liquid treasury debt and that on short term treasury debt typically reflects a positive maturity premium for longer term debt, right? Okay, so इसको सिंपल रखते हैं. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी आगे और चीज़ें हो सकती हैं इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर, लेकिन जस्ट कीप इट सिंपल. ओके, द लॉन्गर द मेच्योरिटी तो राइट, तो उसके अंदर बेसिकली जितनी ज़्यादा okay, नहीं, let's go to this a little deeper. We're saying that your maturity risk premium, I'm going to read from the syllabus for a minute. The maturity premium, right? Because इसके एक दो चीजें जो कि आपको समझनी चाहिए. तो I think it's a good idea to dive a little deeper. The maturity premium compensates investors for the increased sensitivity of the market value of debt, okay, to a change in market interest rates as maturity is extended. Okay, in general, holding all else equal, right? ये भी इन्होंने बोला है. The difference between, now please note, ये अगर आप लोग इसको देखेंगे कि let me remove everything. Let's say आपका फेस वैल्यू है $1,000. Okay. Annual interest rate है, right? So the cash flow is basically $5, okay, or 5%, right, per year.
और आपकी जो नंबर ऑफ पीरियड्स है, ये मेच्योरिटी है, लेट्स से इज 2 years, ओके। ये सिनेरियो 1 है, राइट, सिनेरियो 1, ओके, दिस सिनेरियो 1, ओके। फेस वैल्यू इतनी है $1000, कैश फ्लो इतना है, नंबर ऑफ पीरियड्स इतने हैं, राइट, एंड राइट, तो और लेट्स से कि मैं कहता हूं कि और प्रिवेलिंग और जो डिस्काउंट रेट है, राइट, द आर इज बेसिकली, इंटरेस्ट रेट इज बेसिकली, let's say it's interest rate is let's say should we do that or not? Let's say, wait a minute, okay, ऐसा करते हैं नहीं guys, what we're going to do is, I'm not going to go into this because I'm just thinking about it and I think it's going to get too technical for you guys at this point, so I'm not going to go into this right now. I'm just going to keep things simple, okay? Let's keep things simple for you, because मैं जिन concepts में जा रहा हूँ, I just thought about it and I think it's better that we hold on to these concepts for a bit, for later, क्योंकि if we go to this right now, you guys you guys don't need to have some other information knowledge as well before you're able to solve this, right? So keeping things simple, इस बात को आपने याद रखना है कि increase sensitivity, जब हम मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम की बात करते हैं तो आप लोगों को जो चीज याद करने की है कि इन्वेस्टर्स कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं फॉर इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ डेट टू अ चेंज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट एज मेच्योरिटी इज एक्सटेंडेड, राइट। एक बात आप याद रखें कि अगर मैं अपनी मेच्योरिटी ऑफ डेट या मेच्योरिटी इन अदर वर्ड्स में मैं आपको कहूं कि मुझे 1 साल के लिए बोरोइंग करनी है आपसे, ठीक है ना, इसके कंपैरिजन में मैं आपको बोलूं कि मुझे 20 साल के लिए कंपैरिजन 20 ईयर्स के लिए करनी है, तो आपको राइट, तो क्या होता है कि ये जो 20 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है, इतना जो लॉन्ग मैं आपसे ज़्यादा पैसे मांग रहा हूँ बनिस्बत 1 साल के, तो इसमें जो आप हैं यानी कि जो लेंडर हैं, आपका रिस्क ज़्यादा है। वाई? बिकॉज अगर इंटरेस्ट रेट्स थोड़े से भी ऊपर नीचे होते हैं ना, इंटरेस्ट रेट अगर थोड़े से भी ऊपर नीचे होंगे, तो आपकी जो मार्केट वैल्यू ऑफ योर market value of that bond or that debt instrument is going to be more severely impacted, right? ये कैसे होता है? We'll go to this later, but for now just understand that this is the case, okay? So let me remove all this. So right now that was it. That's basically what's happening with the different risk premiums along with the real risk free rates, right? So one more time before I end this lecture, I'd like to point out कि जो इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो आर डिनोट्स इंटरेस्ट रेट्स, राइट, इंटरेस्ट रेट, ये बेसिकली आपकी कॉम्पनसेशन आपको किस चीज़ की मिल रही है? सबसे पहले फॉर द रियल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इज व्हाट इज द कॉम्पनसेशन दैट द लेंडर ऑफ फंड्स गेट्स फॉर डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन या फॉर choosing to not spend now and to spend later indeed. That's what delayed gratification is, right? I'm using my own terminology, लेकिन आपका जो करिकुलम है वो कहता है कि करंट और फ्यूचर कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, but that's exactly what it is, right? If you are delaying gratification, then you are actually doing what the curriculum states के you are basically choosing future consumption over current consumption, right? मैं अभी नहीं स्पेंड, मेरा पैसे भी मैं खर्च कर सकता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं अभी नहीं खर्चूंगा, मैं 4 साल 5 साल या वट एवर अमाउंट पीरियड के बाद खर्चूंगा, तो आई विल हैव, तो उसकी आपको कॉम्पनसेशन मिलती है, राइट, फॉर डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन। दूसरा जो कंपोनेंट है वो इन्फ्लेशन प्रीमियम है, राइट। जिस तरह मैंने बताया आपको कि रियल का मतलब है कि इस कंपोनेंट के अंदर हम इन्फ्लेशन की कोई कोई कॉम्पनसेशन नहीं ले रहे हैं, बिकॉज हमने इस वाले कंपोनेंट की डेफिनेशन ही है कि वो कॉम्पनसेशन जो आपको डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन की वजह से मिल रही है उस सिनेरियो के अंदर कि अगर इन्फ्लेशन ना हो, राइट।
जो दूसरा रिस्क प्रीमियम है वो आपका डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम है कि अगर एक जिस पार्टी को मैं लेंड कर रहा हूँ, इफ दे आर अनेबल टू पे ऑन टाइम और दे आर अनेबल टू पे द अमाउंट, द एग्जैक्ट अमाउंट, और दे आर अनेबल टू पे द फुल अमाउंट, या दोनों, यानी कि टाइम पे भी नहीं कर सक रहे और पूरा भी नहीं कर सक रहे, ठीक है ना। तो एनीवे, इन एनी सिचुएशन डिफॉल्ट रिस्क ये हो गया। लिक्विडिटी प्रीमियम होता है कि लिक्विडिटी प्रीमियम ये होता है कि अगर मैंने आपको पैसे अगर आपको बहुत जल्दी आपने कोई एसेट खरीदा है और आप उसको बहुत जल्दी कितना जल्दी आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट लूजिंग वैल्यू, राइट। ये तीसरा हो गया। और चौथा होगा मैच्योरिटी प्रीमियम। मैच्योरिटी प्रीमियम सिंपली ये कहता है कि आपकी जो वो एसेट्स जो कि जिनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट, इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ डेट टू चेंज, यानी कि अगर थोड़े से इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे, और मैं आपको एक और बात बहुत ज़रूरी बता दूं कि जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर होते हैं तो एसेट वैल्यूएशंस नीचे जाती हैं। ये क्यों होता है हम आगे देखेंगे, राइट। लेकिन और एंड वाइस वर्सा, जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं तो एसेट वैल्यूएशंस ऊपर जाती हैं। ओके, ये क्यों होता है हम देखेंगे। इसी वजह से मैंने आप लोगों को इसकी एग्जांपल जो डिटेल में नहीं किया, बिकॉज देयर सम अदर कॉन्सेप्ट जो कि वो आपके इधर अप्लाई होंगे। later on we will probably address these, but anyway for now just understand that जो maturity risk premium है वो basically वो maturity risk premium आपको basically वो रिस्क प्रीमियम है, यानी कि वो कॉम्पनसेशन है जो आप मांग रहे हैं बिकॉज आपकी जो लेट्स से जिस तरह आपकी मेच्योरिटी बढ़ रही है, इन अदर वर्ड्स आप जितना देर से अपना पैसा वापस आपको मिलेगा, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है, तो उसकी वजह से आपकी जो आपका जो एसेट है उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट कर सकती है। व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्क वी टॉकिंग अबाउट वैल्यू गोइंग डाउन व्हेन इंटरेस्ट रेट्स गो अप। ओके, यानी कि थोड़ी सी भी इंटरेस्ट रेट्स की मूवमेंट होगी और अगर आपने बहुत लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी लैंडिंग की हुई है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। ये कैसे होता है विल गो टू दैट लेटर, बट दैट्स इट फॉर नाउ, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम लोग लेट्स सी व्हाट वी गोइंग टू डिस्कसिंग in the next video. I'm going to do a few let's do a few questions, right. Let me think. Should we yeah, this is a theoretical concept. I don't think we should go into in that much detail. You guys can attempt the question yourselves. next video के अंदर हम लोग जाएंगे rates of return के अंदर, right. We're going to take a look at the rates of return. If you guys have any questions relating to these first two videos जो हमने रिलीज किए हैं, यानी कि दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ जिससे मैंने बोला था कि जो इंटरेस्ट रेट, राइट। सो इसके हम लोग जो इंटरेस्ट रेट्स के जो डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो के अंदर, जो पार्ट 1 है, राइट, और दिस वीडियो जो कि पार्ट 2 है, इन दो वीडियोस के अंदर अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, तो आप प्लीज़ राइट you guys are welcome to comment in the comment section below and I will try to answer your questions ASAP, right. I cannot promise answering it immediately, right, but I will try to get back to you as soon as possible. Okay guys, that's it for now. We'll see you guys in the next video.